एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम में, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंहांस हो सके, इंक्रीज हो सके। राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम to English medium despite having studied from the first class to the intermediate or even to the graduation throughout in Hindi medium? Is it still really possible to change the medium? So actually my answer is yes, it is 100% possible. Now the next yet very important question must be coming to your mind that if it is possible, then how it is possible? What are the ways, what are the methodologies, what are the techniques, what are the things that one needs to follow in order to change the medium from Hindi medium to English medium? So actually I am getting a lot of WhatsApp messages that sir grammar अगर necessary है तो कितनी necessary है, मतलब कितनी जरूरी है ग्रामर। अगर कोई चेंज करना चाहता है तो एक ग्रामर का बहुत ज्यादा फियर है कि ग्रामर बहुत ज्यादा पढ़नी चाहिए, सारी ग्रामर आनी चाहिए, तो भी हम इंग्लिश मीडियम में स्विच हो सकते हैं, हिंदी मीडियम को छोड़ के इंग्लिश मीडियम में आ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर हमें नहीं आती। इस वजह से हम बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट द ग्रामर सीरीज आल्सो फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्रामर भी सीखते हैं कि और उसको सीखते सीखते मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हाउ मच ऑफ ग्रामर इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मीडियम फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड स्पेसिफिकली हाउ मच ग्रामर डू यू रिक्वायर। How much grammar means whatever the amount of number of the grammar that you require, means the knowledge of the grammar you require to change the medium from Hindi medium to English medium and feel confident that yes, now I have a proper knowledge of the English language, right? So that I can write also, I can speak also, I can read also, right? So these are the things that must be revolving around your mind. So I thought that okay, I will be starting a series, a complete series from the grammar. Okay, so grammar को कैसे start करते हैं? What is grammar? First of all, we should just try to get to know that what is the meaning of the grammar. Why do we actually require a grammar, right? So here how we should start. See, English is a language. So English is what? English. So I have written English, right? So what is it? So first of all, whatever I'm speaking right in front of you, suppose I have been speaking in English, okay, right in front of you, like whatever I'm speaking, are you able to identify something, right? If I'm speaking in English, so you are familiar with this language, right? So that is why you can easily identify that whatever I'm speaking, it is in the English language, right? You cannot say it is the Japanese language, right? You cannot say, because you have not heard the Japanese language, right? So first of all, we should try and understand that how we identify that this particular language is this language, right? So English is the language, right? So first of all, English is what? English is the language, ठीक है ना? English is the language, right? English is the language, but English is not the subject. English is not the subject. English is not the subject, because we often believe that English is a subject, right? English is not a subject. Subjects may be in a general sense like history, okay, geography, okay, polity, right? These things can be called as a subject, right? But English is a language. English is a language, right? So English has a grammar. So every language would be having a grammar. And what is the grammar? Grammar is a set of rules, to speak. Suppose if you want to speak something in English, so you should know some of the rules, right? अब वो rules क्या होंगे? We will be discussing here on, right? आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊं, और ज्यादा से ज्यादा मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके अंदर का जो फियर है ना वो निकले। मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में बोलूंगा, जिससे आपको ये लगेगा कि अरे मेरे को सबको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि आपको समझ, बट एक फियर आपके अंदर बैठा हुआ है जो आपको बोलने नहीं देता, ठीक है ना? तो उस फियर को निकालना। यू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ओके? आपको 60-70% इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू आर डेफिनेटली एबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश। देयर इज नो वरीज ऑल अबाउट, राइट? So English is a language. So English is a language and every language has its grammar. और अगर आप इसको ग्रामर बोलो या आप इसको रूल्स या रेगुलेशन की सेट बोलो, ठीक है ना? So is a set of rules, okay, to speak, ठीक है ना? एक तो हो गया अगर ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है ना? तो इसको हम सबसे पहले कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो फर्स्ट बाय स्पीकिंग, ठीक है ना? तो स्पीकिंग से हम बोलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा हम क्या कर सकते हैं? लिसनिंग करेंगे हम, ठीक है ना? तो पहला हो गया हमारा स्पीकिंग, हो गया लिसनिंग, हो गया, ठीक है ना? इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम इसको रीड भी करना चाहेंगे, राइट? एंड देन वी वुड एंड अप राइटिंग इट ऑल्सो, राइट? सो 1, 2, 3 and 4, these are the 4 component of any language, right? So in the mains examination you have to write also, right? In the prelims examination you'll have to read also, right? You'll have to read the questions to mark the correct answers out of the 4, okay? And now you have to listen. So here you are listening, like every single day you are listening over
right? You are listening whatever I'm saying, so at least so like you have started listening the language, so it means you are onto the path of learning English language, right? So you are listening also. Speaking, you have to do that. So first of all, when you are able to identify that whatever I'm speaking is in the English language, right? So now you can start thinking in English, right? You can start thinking and you can start speaking a little bit, right? So speaking would be your effort, right? And this is the WhatsApp number that is given, so you can send your voice notes, whatever you want to speak on any particular topic with respect to the civil service examination, or for that matter any topic. Okay, you can send on this particular WhatsApp number. I will be reflecting back on you to correct you that how you should improve your English language, speaking language basically, right? So आपको ये भी एक चीज क्लियर हो गई. So now up to here we understand, right? So English is what? English is not a subject. English is not a subject. Subjects are like history, geography, polity, economy, right? These are the subjects, okay? And these subjects does not have any grammar. These subjects does not have any grammar. These subjects are the facts, okay? All the datas and the information, right? But English just being a language, so it has the grammar. So grammar को आप बोलो rules है, regulations है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना? इसका synonyms आप समझ लो कि rules है. सिनोनिम्स आप इसका समझो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है ना? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी इसमें नियम या कानून बताए गए कि एक लैंग्वेज को बोलना कैसे, ठीक है ना? अब बात आती है कि सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि हाउ मच ग्रामर इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम. सो हियर व्हाटएवर आई विल बी टीचिंग, आई विल बी कीप ऑन लेटिंग यू नो दैट सिंस यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, हाउ मच ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रामर दैट आई एम गोना टीच यू इज रिक्वायर्ड. सो इफ यू नो दिस और इफ यू डू नॉट नो दिस, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, राइट? सो हियर अगर हिंदी की बात करूं मैं, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू इन हिंदी, सो डू यू नो द grammar of Hindi? Do you know the grammar of Hindi? Be very, very honest with you. I'm asking this question to you. Do you know the grammar of Hindi? Mostly 99.99% those who are watching this video must not be aware with the grammar of the Hindi language. Why? Because you've gotten an environment. You have gotten an environment where everybody was speaking in Hindi. You step out of your home, all your friends, all your colleagues, okay, in your school, everybody was speaking in Hindi, right? So you don't have to learn because you know the proper structuring of a word. You won't say राम गया है स्कूल, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया. तो अगर एक सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकालना तो आपको पता है यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, बट वो आपने सीखा नहीं कभी बिकॉज एनवायरमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली दैट थिंग्स हैज गॉट इनटू योर माइंड, राइट? सो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड व्हेन यू आर एबल टू स्पीक समथिंग डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट आल्सो बिकॉज व्हाटएवर इज इन योर माइंड you can definitely put it on the paper, right? It becomes very easy. So here the most important problem with the English language is that you are not able to speak basically. You are able to understand. You are able to understand. I'm sure you are able to like 70 to 80% you would be able to definitely understand whatever I'm speaking in English, right? No matter how fast I speak, but definitely you'd be able to understand, you know. But in Hindi what? You have got acclimatized completely, right? So Hindi आपको बिल्कुल naturally आती है. So in English the first and the most important thing is start listening to it. जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप. If you really want to learn speaking in English, right? Learn speaking in English, and specifically if you want to prepare for the civil service examination and you want to change your medium from Hindi medium to English medium, what you need to do is that start listening English more and more. So the moment you start listening, so your environment will get created like that. So when you start listening more and more, your mind will start reflecting onto that. See, every action has its reaction, right? So when you are listening something, definitely you would be speaking something, all right? So that particular effort you need to put into yours. Right? The moment you start speaking, you definitely gonna improve so many things, right? Now here we're gonna see some of the important, you know, हम स्क्रैच से ग्रामर शुरू करें, बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है ना? पूरी की पूरी जितनी भी ग्रामर है सारी देखेंगे आने वाले जितने भी मंथ है, जितना भी टाइम लगेगा, विल बी डूइंग दैट सो दैट कि जो भी एक हिंदी मीडियम का बच्चा है जिसको लगता है कि इंग्लिश मैंने तो पढ़ी नहीं, या मैं मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गया तो मैं कैसे सीख सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स होती हैं, तो वो सारा फियर आपके मन से निकल जाए और आप अपने मीडियम को डेफिनेटली चेंज करें. और हम चेंज क्यों कर रहे हैं कि सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो. अगर आप इतनी मेहनत करो, इतना फाइनेंशियल लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, इतना यूथ लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, सब कुछ आप लगा रहे हो, ठीक है ना? कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, ठीक है ना? आइसोलेशन में रह रहे हो, सोशली कट ऑफ रह रहे हो, स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे हो, ठीक है ना? बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो. सो इसका कुछ मीनिंग तो निकल के आना चाहिए ना. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ मीनिंग, राइट? अगर इसका कोई मीनिंग निकालो तो इतना सैक्रिफाइस करने की जरूरत क्या है? क्या करोगे आप करके? अगर आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस? there is no use of it, right? So आप अपनी लाइफ का एक एक मिनट जहां भी लगा रहे हैं, you should be completely wiseful कि भाई कहां लगा रहा हूं मैं ये सारा टाइम, ठीक है ना? तो इंग्लिश में अगर आप शिफ्ट करते हो तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट? सो आप देखें, यहां तक हमने देखा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, राइट? और एक होती है जैसे मान लीजिए राजस्थानी हमारी भाषा है, ठीक है ना? तो राजस्थानी हमारी भाषा नहीं है, ठीक है ना? राजस्थानी ये हमारी भाषा नहीं, बोली है, बोली, तो इसको बोलते हैं डायलेक्ट बोलते हैं, है ना? तो इसकी क्या होती है? नो ग्रामर, ठीक है ना? इसकी ग्रामर केवल लैंग्वेज की होती है. जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है ना? हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है ना? तो हिंदी की क्या है? हिंदी की हमारी लैंग्वेज है, और तो हिंदी की क्या होगी? ग्रामर होगी. तो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, और ग्रामर में होते क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना? आप जैसे देख लेते हैं एक सिंपल सी चीज, जैसे मान लीजिए कि हिंदी में मैं बोलता हूं कि मैं मार्केट जाता हूं, ठीक है ना?
मैं मार्केट जाता हूं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हिंदी का एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो मैं है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और मार्केट क्या है हमारा, और ये जाता हूं क्या है हमारा। अब आप बताओ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये मार्केट है, मैं मार्केट जाता हूं, तो मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक जगह का नाम बताया जा रहा है, ठीक है ना। और जाता मतलब क्या हूं, ये हमारा हो गया वर्ब हो गया, ठीक है ना। और ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इसका जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर निकल के आता है द हिंदी, लाइक सपोज व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी, मैं ये आपको व्हाई एम आई टेलिंग दिस, व्हाट इज द रीजन ऑफ टेलिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट, और दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट। इसका क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है ना, आप ऐसे ही तो पढ़ते आ रहे हो ना मेरे साथ, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है ना। ये हो गया हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आप हिंदी जो भी बोलते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इमीडिएटली उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ये हमारा हिंदी हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि यही सेम सेंटेंस को मैं लिखता हूं इंग्लिश में, ठीक है ना। सो यहां पे होगा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आर साइलेंट रहता है, ठीक है ना, आई गो टू मार्केट। सो आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लोग बोलते हैं ना ये हो गई प्रोनाउंसिएशन किसमें, जो कि गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, आप जैसा बोलते हो वैसा गलत। तो इसकी स्पेलिंग होती है PRONUNCIATION, ठीक है ना। इसको कैसे बोलते हैं, कैसे, ये होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ऐसे, ठीक है ना। ये सारी चीजों को आपको ख्याल में रखना है। जितनी अच्छी आपकी होगी, क्या होगी, प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ये हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्यों बता रहा हूं, अभी आई विल बी टेलिंग यू, राइट। सो आई गो टू मार्केट, सो यहां पे सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद क्या आया, वर्ब आया, ठीक है ना। एंड वर्ब के बाद क्या आया, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, अब अगर इसी को मैं यहां लिखूं तो यहां पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया वर्ब, ठीक है ना। फिर वर्ब की जगह क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका मतलब जो वर्ब है वो यहां पर आ गई और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर चला गया। तो अब जब इंग्लिश मीडियम में आप बोलना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप हिंदी की तरह बिल्कुल ना सोचें, हूबहू आपको नहीं सोचा। इसी वजह से ये मैंने आपको बताया कि हिंदी बिल्कुल सेम टू सेम आपको नहीं सोचना है। मैं मार्केट जाता हूं तो आपने सोचा आई मार्केट टू गो, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ग्रामर, आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की समझ होनी चाहिए, बस इतनी टाइप की, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए हमने यहां तक देखा कि क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये होता है क्या, ग्रामर है, ठीक है ना। अब इंग्लिश को आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, हाउ हैव यू आइडेंटिफाइड अ लैंग्वेज, हाउ हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई अ लैंग्वेज, दैट व्हिच लैंग्वेज एम आई स्पीकिंग। इफ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट व्हिच लैंग्वेज एम आई स्पीकिंग टू यू, which language, you can easily say English language. How? Because you are hearing it from your ears, right? So आप अपने यहां से कान से क्या सुनते हैं, sound, right? So sound से आप identify करते हैं कि this is language, English language, this is the Hindi language, or this is whatever the language that you are listening, right? So आपको sound से you can identify the things from the sounds, right? So next important thing comes is like this sound, okay? So here is the sound, right? So English is the language and language has the grammar, right? अब grammar के बाद क्या आते हैं, how you can identify this particular language just by listening to a sound, right? अभी हो गया sound। अब sound क्या होता है, sound कैसे, अब कैसे हमें पता चलेगी sound है ये, how we can easily identify that okay this particular language that I am listening is a sound, okay? So कुछ आवाज हमें सुनाई दे रही है, ठीक है ना। Suppose I am speaking, I am going to market, then I'll be buying this, then I'll be coming back to my home, then I'll be taking rest, then I'll be eating food, then I'll be taking my dinner, then I'll be going for a walk, then I'll be doing this and that, blah blah blah, then I'll be going to sleep, then again I'll be waking up and I'll be doing the yoga and I'll be studying and going to the office, something like that, okay? I'm speaking. So you are able to understand that which language am I speaking to you, which language am I speaking to you, I mean I'm speaking in English, right? So speaking in English, तो आपने समझ में कैसा है, sound, you are listening something, right? So you are listening, you are able to hear something. So when you are hearing, then your mind identifies it that yes, this is a language, right? So this is which language? This is the English language. So आपने सुना, अब इसको समझेंगे कैसे, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड इससे होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये लिखा है यहाँ पे, मान लो आ, ये हिंदी का है ना, ठीक है ना, आ हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या, ई बोलते हैं उसको, ई, इसको बोलते आ, ठीक है ना। इसको लिखा ए, ठीक है ना, इसको लिखा सी। तो सी और ई में तो डिफरेंस है ना। सो यही जो साउंड होता है, इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज सर्टेन लेटर्स, ओके, वी यूज सर्टेन लेटर्स। तो वो लेटर्स क्या होते हैं, वो हमारे जितने भी इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं टोटल, ठीक है ना। तो ये 26 लेटर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और साउंड हमारा कितने टाइप का होता है, एक होता है मीनिंगफुल साउंड, एक होता है मीनिंगफुल साउंड, एक होता है मीनिंगलेस साउंड, एक होता है मीनिंगलेस साउंड। अब ये हमारा मीनिंगफुल साउंड क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पेन,
तो आपको लगा हाँ ठीक है, पेन की बात करी, पेन मतलब सही साउंड आ रहा है, ठीक है ना, पेन ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूं NEP, तो मीनिंगफुल साउंड आया नहीं आया, राइट। सो मीनिंगफुल, तो ये हो गया मीनिंगलेस साउंड, ये हो गया मीनिंगफुल। सो टू रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल साउंड, टू रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल साउंड वी यूज लेटर्स एंड दीज लेटर्स आर 26 इन नंबर्स, ओके। और फर्दर हम इन लेटर्स को डिवाइड करेंगे किस चीज में, आपने सुना होगा वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसको वावेल नहीं बोलते, ठीक है ना, वावेल नहीं बोलते, VOWEL, इसको बोलते हैं वाउल्स, वाउल्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वाउल्स, ठीक है ना। एंड ये एक कैटेगरी हो गई हमारे लेटर्स की, और दूसरा इसमें किसमें होता है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया ये हमारा कॉन्सोनेंट। अब इसको पढ़ते कैसे, कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ते, ये ओ है ना, तो ऐसे नहीं पढ़ते, इसमें ओ को हम ऐसे पढ़ते, ये वाला होता है, ये वाला उच्चारण आता है ओ का। अब ऐसे मान लो आपको ऑफिस जाओ तो आप क्या बोलोगे, ऑफिस जा रहा हूं मैं, ऑफिस या ऑफिस, ऑफिस या ऑफिस, ऑफिस बोलेंगे डेफिनेटली, है ना, ऑफिस को ऑफिस बोलेंगे ऐसे करके, है ना। तो ये वाला आ आएगा, ये वाला आ नहीं है, ये वाला ओ नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको बोला किसी को आप हॉट हैं, ठीक है ना, तो हॉट बोलोगे, आपके खाना बहुत हॉट है, आप बोलोगे हॉट है, हॉट, राइट। तो फिर यहां पे हा के साथ ये वाला आ, ठीक है ना, ओ की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, ऐसे हो गया। जैसे आपको बोला नॉट, तो क्या बोलोगे आप, नोट बोलोगे, नोट, तो नोट के लिए तो ये स्पेलिंग हो जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि कैसे हमें स्पीकिंग करना, तो सिर्फ ये फंक्शन, तो इन सारी चीजों को तो कोई भी सीख सकता है। मेरा इसको सिखाने का मतलब है कि ग्रामर जिसको सीखना है वो तो सीख ही लेगा पूरी की पूरी, बट उसके साथ साथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है कि ग्रामर है क्या, तो इससे ज्यादा स्क्रैच से शुरू नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शुरू नहीं की जा सकती ग्रामर, ठीक है ना। तो आप यहां से सोचना शुरू करिए कि इसका मतलब क्या। आप देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, अभी आज इसको यहीं तक रख दिया, ठीक है ना, बाकी वीडियोस आती रहेंगी डेली, आप इसको देखते रहिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, ओके। एंड द ग्रामर you can easily set these are the set of rules and regulations, right? In that set of rules and regulations we'll have to speak the language, we'll have to write the language, we'll have to read the language, and we'll have to understand also, right? So these are the rules and regulations collectively called the grammar, okay? Grammar इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, ठीक है ना। तो व्याकरण बोलो या ग्रामर बोलो। आपको हिंदी की ग्रामर नहीं आती, नो प्रॉब्लम, बट इंग्लिश की थोड़ी बहुत हमें सीखी, क्योंकि दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है ना, इसको हमें सीखना है, राइट। उसके बाद हमारा होता क्या है, अब जब ग्रामर के बाद आते हो तो ग्रामर, सो हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इन, सो आई एम बेसिकली समराइजिंग व्हाटएवर आई हैव टॉट यू जस्ट, ओके। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड जैसा मेरा प्रोनाउंसिएशन है, यू हैव टू जस्ट इमिटेट एग्जैक्टली, ठीक है ना। आपको इमिटेट करना मतलब नकल करना है, हु बहु वर्बैटिम, यू हैव टू जस्ट द वे आई एम स्पीकिंग, जस्ट ट्राई टू स्पीक अ लिटिल बिट लाइक दैट, राइट। आपकी इंग्लिश की फैंसीनेस भी बढ़ेगी एंड और आपको अच्छा भी लगेगा, यू विल फील बेटर, राइट। और जो सामने सुनेगा उसके दिमाग में हाँ मतलब इसने अच्छे से पढ़ाई की, कहीं अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, इससे मेहनत की लाइफ, राइट। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, English is not a subject, English is a language, and every language has what? Every language has its grammar. Why? Just to let others know that how, suppose if I want to learn the English language, okay, how would I learn? Okay, means there has to be some rules and regulations, okay, and those rules and the regulations are coming from where? How we are able to identify? How we are able to identify that this particular language that I'm speaking to you is English? How we are able to identify it? Just because listening something from your ears, right? Through our ears we are listening something, right? And we are quite aware of that, okay, just you know, actually this person is speaking in English, right? So in English how we are identified? Just through the sounds, and those sounds are produced from where? Those sounds are produced from where? Right? So to produce those sounds we have letters in English, right? So this is also the part of the grammar, right? Because in the grammar these letters are given, okay, and the number of all these letters are 26, right? So what we say, these are the letters, okay, and how we call it, like alphabet, okay. So here I have written alphabet, okay. One sentence I'm asking everybody to answer this, okay, and write in the comments box whenever you see the video, okay. Suppose you have learned the alphabets in your school, right? So this is the sentence. Do you find any wrong or something not right in this particular sentence, right? See here, what is wrong? You find, have, find, learned, file the alphabets, because they are 26 in letters, right, in your school. Everything is correct, right? But the word alphabet, so S is not required over here. So likewise S is not required over here, because this in itself is a plural word, right? तो हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज जब भी हम सीखते हैं तो हमें उसमें क्या नहीं करना, जहां पर भी एक से ज्यादा, जैसे यहाँ पे 26 लेटर्स, तो हमें ये नहीं कि जबरदस्ती हमें क्या लगा देना है, अल्फाबेट की क्या लगा देना है, S या ये समय जरूर लगाना, नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ही ध्यान, और वो आपको इसी प्रोसेस में यू विल बी एबल टू लर्न, राइट।
राइट। सो हमने यहां तक सीखा इंग्लिश है, ये एक लैंग्वेज है, इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी ग्रामर होती है, और ग्रामर को कैसे मानने से कहते हैं, साउंड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारे साउंड्स होते हैं, व्हाटएवर वी लिसन वी कैन आइडेंटिफाई ओके दिस पर्सन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट यस दिस लैंग्वेज इज इंग्लिश, नाउ स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, राइट। सो टू लर्न इंग्लिश वी स्टार्ट लाइक व्हाट आर द लेटर्स, हाउ वी आर एबल टू, ये साउंड बनते कैसे हैं, ठीक है ना। सो जब ये हमारे लेटर्स आते हैं हमारे सामने, ठीक है ना, तो उनको मिलाते हैं जब हम एक साथ, ठीक है, जैसे पेन में, तो अभी इसको बोलेंगे पी, तो इसको अलग से बोलेंगे पी, बट अगर ई एन लगा दिया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पेन, राइट। तो एक साउंड क्रिएट करा, तो व्हेन वी लिसन दिस साउंड वी से हाँ दिस इज इंग्लिश, राइट। तो ऐसे करके आपको सीखना है, ठीक है ना। और ये वर्ड्स कैसे होते हैं, हमारे मीनिंग होते हैं, जो मीनिंगफुल साउंड्स होते हैं और कुछ मीनिंगलेस साउंड्स होते हैं, ठीक है ना। फिर इनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो वोवेल्स होते हैं, जो कि हमारे 5 इन नंबर्स होती है, सारा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो यहां तक है, आप अपने आप को सीखिए, व्हाटएवर आई हैव स्पोकन टू यू, व्हाटएवर आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, ओके। तो आप इसको समझिए, सोचिए और इसको लिखिए। दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर यू कैन राइट व्हाटएवर आई हैव जस्ट टॉल्ड यू, ओके। और ऑल द क्वेरीज, व्हाटएवर द क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, यू कैन राइट ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर, आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन यू, ऑलराइट। सो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने मीडियम को चेंज करना है, या इन मतलब आपको सीखना है इंग्लिश भी, ठीक है ना, तो आप उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।